बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम एक्वीफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो सेकंड क्लिप होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ एक्वीफर्स उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम एक्वीफर्स देखते हैं कि एक्वीफर क्या होता है, किसको हम एक्वीफर कहते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक्वीफर अगर हम वर्ड देखेंगे पहले, एक्वीफर एक्चुअली ये एक लैटिन वर्ड है। ओके, ये लैटिन वर्ड है, डिराइव किया गया है और जिसका मतलब होता है टू बियर वाटर। ओके, एक्वी इज रिलेटेड टू वाटर, फर मीन्स बियरिंग और कंटेनिंग। सो वाटर बियरर या वाटर बियरिंग। जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो एक्वीफर उस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को हम कहेंगे या उन रॉक लेयर्स, लूज अनकंसोलिडेटेड सैंड, ग्रेवल, पेबल या बेड्स को कहेंगे, जिनमें जो दो हाइड्रोलिक इंपॉर्टेंट जो वाटर बियरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक को हम पोरासिटी कहते हैं, दूसरे को हम परमिएबिलिटी कहते हैं। ओके, पोरासिटी इज ability to store water and then permeability is the ability to let the water flow through interconnected pores. Okay, जिस geological formation में या जिन rock layers में loose unconsolidated और hard rock layers जिनमें ये porosity भी हो और permeability भी हो, ओके, ये प्रॉपर्टीज़ हों इन फॉर्मेशंस में, इनमें वाटर स्टोर भी हो सकता है, मूव भी कर सकता है, फ्लो भी होता है। सो बाय वर्चू ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ दे कैन यील्ड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, दे कैन यील्ड appreciable amount of water. Okay, so for example we have loose unconsolidated sands, gravel, pebble. Okay, then hard rock, sandstone अगर sand consolidate होती है, then limestone के ये these are naturally these are born good aquifers, they form good aquifers by their origin. Okay, naturally they are considered to be the very good aquifers or best aquifers because the sands, loose unconsolidated sand, gravel and sandstone, they have natural porosity as well as permeability, born porosity as well as permeability, so they can store water and they can also transmit that water through interconnected pores. So if we can derive appreciable amount of water and develop that then economically and use that economically, that geological formation, whether loose or unconsolidated or hard rocks, those are then termed as aquifers. Okay, a sandstone layer having high porosity, permeability. Likewise, if limestone is cavernous enough, then it has naturally these openings, natural openings because of dissolution effect. So that can also transmit large amount of quantities of water to wells when they are tapped and water is pumped from these aquifers. So these formations, they form natural good aquifers. They are considered to be the ideal geological formation for forming good aquifers. Okay, now ये तो नेचुरल एक्वीफर्स बनाते हैं, लेकिन अगर हार्ड रॉक भी हो, पहले आपको मैं उससे पहले ये फिगर में दिखाता हूँ। यहाँ पे दिस इज इम्परमिएबल लेयर। ओके, किस तरह एक्वीफर बन सकता है। इम्परमिएबल लेयर, इट कैन बी शेल और एनी अदर हार्ड volcanic rock as well, which is non porous as well as impermeable. Okay, granite, just like quartzite, be metamorphic rock, gneiss, schist, these are impermeable rock formations. then अगर इसके ऊपर कहीं डिपॉजिशन हुई हो, सैंड वगैरह, ग्रेवल, पेबल डिपॉजिट हुआ होगा, तो इसमें
पॉसिबिलिटी है कि अच्छा एक्वीफर बन सकता है। वहाँ पे सब सरफेस जो सब टेरेनियन जो फॉर्मेशंस होंगी वहाँ पे वाटर स्टोर भी होगा। एंड देन वो अगर हम उसमें कोई वेल फिर ड्रिल करेंगे, बोर कोई होल करेंगे, तो इसमें फिर वाटर जब हम पंप करेंगे तो वाटर कैन ईजीली फ्लो towards the well, okay, in sufficient, in appreciable amount, so it can be tapped economically, okay. Plus the water wells would have higher viability in terms of supply of water, subsurface supply of water for drinking purpose, domestic purpose, whatever the purpose we have drilled that well, okay. So then again टॉप पे थोड़ी सॉइल होगी जो पोरस होती है, यहीं पे इनफिल्ट्रेशन टॉप ग्राउंड सरफेस पे होती है जो फिर इनफिल्ट्रेट होके फिर डीपर लेवल की तरफ परकुलेट आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है इंटरग्रेनुलर पोर स्पेस में। इट टेक्स टाइम वर्टिकली, ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। देन जो सब सरफेस में सैचुरेशन होगी, ये जो सैचुरेटेड जोन होगा जिसमें सभी पोर्स फुल होंगे, वही ग्राउंड वाटर बनाता है। उसकी टॉप सरफेस को ही फिर हम वाटर टेबल भी कहते हैं या ग्राउंड वाटर लेवल भी कहते हैं, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है अकॉर्डिंग टू द रिचार्जिंग कंडीशंस, ऊपर नीचे राइज भी होता है, डाउन भी होता है। सो देन यहाँ पे फिर हॉरिजेंटली वाटर जो है फ्लो करता है फ्रॉम हायर हाइड्रोलिक हेड टुवर्ड्स द लोअर हाइड्रोलिक हेड। तो अगर कहीं पर भी हम कोई वेल, चाहे डग वेल हो, बोर वेल हो, हैंड पंप ट्यूब वेल हो, तो अगर हम वो ड्रिल करेंगे तो वी कैन गेट water economically, okay. That means these wells can be used economically and there can be development of groundwater resource in that area. That means development of wells, okay, because appreciable amount of water is yielded, okay, that can be then economically used. तो इनको हम एक्वीफर कहते हैं। अब ये जो नेचुरल एक्वीफर होते हैं सैंडस्टोन, ग्रेवल, सैंड, पेबल वगैरह, लेकिन जो हार्ड रॉक होंगे, हार्ड रॉक मीन जो ग्रेनाइट जो कि इम्परवियस भी है होती है या नॉन पोरस भी होती है, इम्परमिएबल भी होती है, ग्रेनाइट है, क्वार्टजॉइट है, these rocks are naturally they are not porous, they are non-porous rocks and they don't have any permeability। लेकिन लेटर ऑन अगर इन रॉक्स में फ्रैक्चर्स पड़े होंगे तो परवियसनेस इनमें आ जाती है, तो ये भी एक्वीफर बना सकते हैं। इन जो इनमें हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी, इंड्यूस्ड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी इम्पार्ट होती है, सो वाटर कैन ईजीली एब्जॉर्ब, इनफिल्ट्रेट एट द ग्राउंड सरफेस, बिकॉज थोड़ी सी वेदरिंग भी हुई होगी तो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। देन आहिस्ता आहिस्ता ये फिर इनफिल्ट्रेट होकर परकुलेट डीपर लेवल्स में ये हो जाता है। वहाँ पे वाटर जो है इन सेकेंडरी पोरासिटीज़ में जो कि इंड्यूस्ड पोरासिटी होते हैं वहाँ पर स्टोर होता है एंड इजीली ये कंडक्ट भी होता है वाइल दीज इंटरकनेक्टेड फ्रैक्चर्स, जॉइंट्स एट्सेट्रा। सो इसमें हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी फिर इंड्यूस हो जाती है। सो दीज कैन आल्सो फॉर्म एक्वीफर्स, जिसको हम हार्ड रॉक एक्वीफर कहते हैं, ओके। सो दिस ऑल अबाउट एक्वीफर। और टाइप्स ऑफ एक्वीफर्स जो हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे, ओके। टाइप्स ऑफ एक्वीफर्स, अनकन्फाइंड और कन्फाइंड एक्वीफर जिसको हम कहते हैं, और वहाँ पे क्या फिजिकल कंडीशंस होती है वाटर की और डिस्पोजिशन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की, उसकी बेस पर फिर हम इसको टाइपिफाई या क्लासीफाई करते हैं, डिविजन्स करते हैं। दो मेन एक्वीफर टाइप्स जो होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। तो अगर हम अब एक्वीफर को डिफाइन करेंगे हम इसीलिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें अक्सर पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं और अलग अलग आएगा टाइप्स, तो शॉर्ट में भी या डिफाइन एक्वीफर 3 नंबर 2 नंबर का भी पूछते हैं। सो एक्वीफर इज सिंपली डिफाइंड एज अ रॉक मास लेयर और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज सैचुरेटेड with groundwater and by virtue of its properties, that is porosity and permeability, is this capable of yielding the contained water at economical costs when tapped. So example is sand, gravel,
sandstones, limestones, and fractured, highly fractured hard rocks, that means granites, these the schists, gneisses, quartzites, etc. So this is all about aquifers. Wait for the next clip.